autoimmune disorder. अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. मैच्योरेशन ऑफ, दो चीजें इसमें हमें डिस्कस करनी है. मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स and concept of self and non-self. You already know there are stem cells in the bone marrow. These are stem cells in bone marrow. Which divide by mitosis repeatedly. And they produce large variety of these precursor cells. So there is a large variety of these precursor cells. So these are precursor cells. अब ये जो precursor cells हैं, every cell has a specific receptor present on it. So these tags show the specific receptor. So every cell has a specific receptor. So these are receptors. So there are specific receptors. Specific receptors. अब ये जो cells हैं, they mature in bone marrow or they mature in thymus gland. ये है maybe bone marrow or maybe thymus gland or thymus gland. The difference is that cells which mature in bone marrow, that are called B lymphocytes, and cells which mature in the thymus gland are called T lymphocytes. But maturation दोनों का process जो है, that is exactly the same. अच्छा, अब इसमें होता ये है कि these are the cells and tissues of, ये हैं जो organs हैं where maturation is taking place, ये उनके cells और tissues हैं. जैसे bone marrow है, तो ये bone marrow cells हैं, for example. Okay, so these bone marrow cells have specific antigens present on their cell surfaces. इनकी surfaces के ऊपर specific antigens हैं. So there is variety of antigens that are present on, yes. So these are antigens present और ये जो है ये receptors हैं. So जो immature lymphocytes and they have the receptors present on them, and the body cells or the tissues, they have antigens present on them. अब होता ये है कि antigen और receptor जहां complementary होंगे, वहां पे ये lymphocytes जो हैं, they will bind with those antigens. जैसे for example, अभी हम देखते हैं कि जैसे for example ये वाला रिसेप्टर है, ये वाला लिम्फोसाइट, तो इसका ये जो रिसेप्टर है इसके साथ लगा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये एंटीजन है, तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड्स हियर एंड डाइज. ये इसके साथ बाइंड करेगा, यानी एंटीजन और रिसेप्टर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या होगा, लिम्फोसाइट binds with the receptor
एंड डाइज। इसका मतलब ये हुआ कि एनी lymphocyte which has receptors complementary to the body's own antigens die, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ओनली लिम्फोसाइट्स यानी ओनली lymphocytes which have receptors not complementary to the body's own cells mature and are released into the bloodstream। अच्छा, जब ये बॉडी में आप सर्कुलेट करेंगे, when these lymphocytes circulate in the blood, तो body's own antigens are recognized as self। तो ये होगा सेल्फ। और एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट or protein which is or antigen which is complementary to receptors on the lymphocytes is recognized as नॉन सेल्फ। इसे हम कहेंगे नॉन सेल्फ। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आई एम श्योर यू विल बी एग्जांपल। ये है आपका कैंपस, ठीक है। यहां हमारे पास ये एक रूम है जहां पे हम रोबोट्स बना रहे हैं। ये रोबोट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी, अगर ये कैंपस जो है इसको आप कंप्लीट बॉडी समझ लें, दिस इज कंप्लीट बॉडी फॉर एग्जांपल, और इसको बोन मैरो आप कंसीडर करें, तो यहाँ पे रोबोट्स बनते हैं। अब ये जो रोबोट्स बनते हैं ये डिफरेंट तरह के रोबोट्स हैं। जैसे ये एक रोबोट है which kills girls, ओके। और ये एक रोबोट है which kills men, और ये एक रोबोट है which kills cats, और this is a robot which kills dogs। अब ये इस रूम के अंदर ये इमेच्योर बन रहे हैं, और इस रूम के अंदर इस रूम में गर्ल्स भी हैं और इस रूम में मेन भी हैं।
अब क्या होगा कि ये जो इमेच्योर रोबोट्स बने थे ना, इनमें से वो रोबोट्स जो गर्ल्स को किल करेंगे बिकॉज दे आर इमेच्योर, तो दे वुड बाइंड विद गर्ल्स एंड दे वुड डाई। तो ये वाला जो रोबोट है ये यहीं पे अंदर ही मर जाएगा, इसी कमरे में ही, ये मेच्योर ही नहीं होगा। इसी तरह से अ रोबोट दैट किल्स मैन वुड बाइंड विद मैन, और वो ये भी अंदर ही मर जाएगा। अगर इसी रूम में कोई कैट्स भी हैं तो ये वाला जो रोबोट है ये भी यहीं पे मर जाएगा। तो वो रोबोट्स जो कमरे के अंदर मौजूद चीजों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो वहीं पे मर जाएंगे, वो मेच्योर ही नहीं होंगे। अब इसमें से मेच्योर कौन सा होगा? ये वाला जो डॉग्स को किल करता है, और ये मेच्योर होके बाहर, ये मेच्योर होगा, यानी अ रोबोट किल्स डॉग्स। और उसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा मेन कैंपस के अंदर, इसकी कॉरिडोर्स के अंदर, इसके अंदर ये सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, इसके अंदर ये मूव करना शुरू कर देगा। ओके, अच्छा, अब चूंकि ये वाला जो रोबोट है, दिस डज नॉट किल गर्ल्स, दिस डज नॉट किल मैन, सो in the campus if there are any girls and if there are any men present in the campus, तो ये जो रोबोट है ये उनको किल नहीं करेगा। why? Because girls and the men would be recognized as self। तो ये जो कैंपस के अंदर गर्ल्स और मैन होंगे, they would be considered as self। ठीक है। अगर कोई कैंपस में फॉर एग्जांपल बाहर से कोई डॉग आ जाए that enters into the body, तो this dog would be recognized as, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू दिस रोबोट, तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये उसके साथ बाइंड करेगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। और अब ये बहुत सारे ये रोबोट्स जो हैं वो डिवाइड होंगे और बहुत सारे रोबोट्स बन जाएंगे, एंड दे वुड अटैक एनी डॉग दैट एंटर्स इनटू द कैंपस एंड दे वुड किल दैट डॉग। तो सो डॉग इज known as non-self. This is the mechanism of maturation. Hope you have understood it. ये बात समझ आई आपको? ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, मैच्योरेशन कैसे होती है, कि वैरायटी ऑफ रोबोट्स हैं जो इमेच्योर प्रोड्यूस होंगे इस कैंपस के एक रूम के अंदर, और उस रूम के अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म और प्रेजेंट होगा, immature robots will bind with them and will die. So such robots complementary to the body's own cells or tissues or receptors or antigens will not mature and will not come out in the bloodstream. And when they circulate in the bloodstream and come across the body's own antigens, they would recognize them as self and they will not attack on the body's own cells or body's own tissues. तो अब इस कैंपस में जैसे आपने देखा कि जो रोबोट मेच्योर होके कैंपस के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, दैट किल्स द डॉग्स, और कैंपस के अंदर डॉग्स तो है ही नहीं। अब अगर बाहर से कोई डॉग बॉडी के अंदर एंटर होगा, कैंपस के अंदर एंटर होगा, तो ये उसे नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो इनिशिएट कर देंगे। अच्छा, अब जरा इमेजिन करो कि जब ये इमेच्योरेशन जो इमेच्योर सेल्स थे, ये मैच्योरेशन प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, और इसमें से वो रोबोट्स जो गर्ल्स को किल करते हैं, वो इसमें से मैच्योरेशन के प्रोसेस के दौरान इस कमरे में से एस्केप कर जाएं और नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में यानी कॉरिडोर्स में आ जाएं, तो फिर क्या होगा? तो वो जो अगर ये गर्ल्स को वैसे मारने लग जाएंगे जो कैंपस में होगी, तो इन शॉर्ट अगर बॉडी में जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज भी होगी, सेल होगा, उसको भी वो किल करने लग जाएंगे। इससे वो बोन मैरो में मर जाएगा। हाँ, मैच्योरेशन के दौरान क्या होता है कि कुछ सेल्स जो बॉडी के ओन एंटीजेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो वहां मैच्योरेशन के दौरान डेड नहीं होते, दे डोंट डाई, इंस्टेड वो एस्केप कर जाते हैं किसी तरह से, वो बाहर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और फिर बॉडी के ओन जो सेल्स हैं, बॉडीज ओन एंटीजेंस, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ
and an immune response is initiated against the body's own tissues and body's own cells. This is known as autoimmune disorder. इसे हम कहते हैं autoimmune disorder. आपको डेफिनेशन समझ आई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है? इम्यून डिसऑर्डर की डेफिनेशन ये होगी कि बॉडीज ओन सेल्स और टिश्यूज are recognized as non-self. यानी यहाँ बॉडीज ओन सेल्स और टिश्यूज की बजाय अगर हम यहाँ लिख लें कि बॉडीज ओन एंटीजेंस, तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है, तो बॉडी के जो अपने एंटीजेंस हैं, बॉडीज ओन एंटीजेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ एंड an immune response is initiated against body's own cells and tissues. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बॉडीज own cells and tissues are damaged by the body's own immune system. This is an autoimmune disorder. ये है autoimmune disorder. अच्छा जी, अब इसमें एग्जांपल्स हैं कि कार्टिलेज में भी डैमेज्ड, cartilage damaged in arthritis, or pancreas damaged in diabetes, or muscles damaged in myasthenia gravis. तो ये है, अगर बॉडी के कोई भी बॉडी का जो सेल या टिश्यू है दैट कैन बी अटैक्ड बाय बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम, और इस तरह से वो पार्ट डैमेज होगा और जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो पार्ट, दैट वुड ऑब्वियसली बी अफेक्टेड. ठीक है, अच्छा, इसकी एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में है माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस माइस्थीनिया ग्रेविस मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है? नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल, दिस इज द मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल, ये मसल टिश्यू है, और मसल टिश्यूज हैव रिसेप्टर्स ऑन देयर सेल सरफेस. ये इनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं. फॉर व्हाट? I'll explain. So these are receptors. ये यहाँ पे एक नर्वस टिश्यू और सेल है which is called motor neuron.
motor neuron. Okay. When we think about moving some our muscle, तो क्या होता है? A nerve impulse is initiated in the brain and that passes through motor neurons to that muscle in the body. और वो जो nerve impulse travel करती है वो इसके long travel करके that reaches, this is number one, and when reaches the end of this motor neuron it causes a chemical substance called neurotransmitter to be released out of them. ये इनमें से एक्सोसाइटोसिस से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है into this gap. इस गैप को हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. इसको हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होगा फ्रॉम द एंड ऑफ न्यूरॉन एंड इट बाइंड्स विद दीज रिसेप्टर्स, और ये इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा. सो इफ दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, तो ये इनके साथ बाइंड कर जाएगा. ओके. और दिस बाइंडिंग ऑफ इट कॉजेज दीज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. ये इसके साथ बाइंड करेगा तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए ना. नंबर 1, द नर्व इंपल्स reaches the end of motor neuron. एक पॉइंट तो ये हमने डिस्कस किया. दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि a neurotransmitter is released. और फिर नंबर 3 हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर binds with receptors on muscle cells और muscle fibers. इससे क्या होगा कि नंबर 4 पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. ये है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. गॉट इट? हम माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस में ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये रिसेप्टर्स, these receptors are recognized as non-self. If these receptors are recognized as non-self in our body, तो फिर क्या होगा? An immune response is initiated against these receptors. तो इन receptors के against जब immune response initiate हो जाता है. Immune response का मतलब ये है कि antibodies are released against these receptors. इन receptors के against antibodies बन जाती हैं, और वो फिर antibodies क्या करती हैं? Antibodies bind with these receptors on muscle cells और muscle fibers. तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज होंगी और वो एंटीबॉडीज यहां बाइंड कर जाएंगे ये इसके साथ. अब अगर एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड कर जाएं तो ये बन जाएगा एंटीबॉडी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी receptor complex. Okay, so consequently what happens then? This antibody complex is absorbed by this cell and is destroyed, और ये receptors cell surface से destroy होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, अब न्यू सिचुएशन जो बनेगी इस
डिजीज के अंदर वो क्या होगी कि ये मसल सेल है और ये है मोटर न्यूरॉन, और इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स थे वो डैमेज हो गए and they have been broken down by this cell. There will be no or there will be few receptors present on the cell surface. और इसके अगेंस्ट जो हैं there are antibodies present. ये antibodies हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब अगर तो न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड करेगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ये एंटीबॉडी बाइंड करेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। यू गॉट इट पॉइंट? इफ एन एंटीबॉडी बाइंड्स विद दिस रिसेप्टर तो मसल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड करेगा तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन हाई है। ग्रेजुअली एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ती जाती है और ये प्रॉब्लम है वो प्रोग्रेस करती जाती है और ज्यादा से ज्यादा सीवियर होती जाती है और सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि रिसेप्टर एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर एब्जॉर्ब्ड बाय मसल सेल्स एंड ब्रोकन डाउन। इससे क्या होगा कि few receptors on muscle cells, so muscle contraction affected, muscles contract नहीं करते। इससे क्या होगा कि gradually muscle cells or muscles weaken, और मसल वेस्टिंग अकर्स, और इससे वेट लॉस जो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मसल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, मसल जो है वो ब्रेक डाउन। ज़ाहिर है मसल्स अगर यूज नहीं होंगे तो नए मसल्स नहीं बनेंगे और जो पहले से बने हुए मसल्स हैं वो भी मसल लॉस जो है वो शुरू होगा, वो भी मसल डैमेज और मसल वेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब जहां जहां भी ये मसल्स हैं, wherever the muscles are present in the body, आप जैसे ये मसल जो है नंबर 1 स्केलेटल मसल्स हैं, जो बॉडी में बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ बॉडी अफेक्टेड, यानी कोई बंदा प्रॉपरली खड़ा नहीं हो सकेगा और प्रॉपरली विल नॉट बी एबल टू मूव और वॉक। अच्छा, इसी तरह से ये जो मसल्स हैं, these muscles are also present in muscles in esophagus, तो इससे स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से मसल्स इन आईलिड्स, तो प्रॉब्लम इन लिफ्टिंग अपर आईलिड, तो आंखें जो हैं वो बंद रहेंगी, ठीक है, प्रॉपरली खुल नहीं सकेंगी आंखें। इसी तरह से जॉ मसल्स, डिफिकल्टी इन स्पीच। तो जहां जहां भी ये मसल्स बॉडी में होंगे, मसल वेस्टिंग होने की वजह से वो फंक्शन जो है बॉडी में अफेक्ट हो जाएगा। हाउएवर हार्ट मसल्स आर नॉट affected by
myasthenia gravis. Explain. ये आपने सोचना है और ये आंसर मुझे आपने बताना है बाद में इसकी वजह क्या है। अब ट्रीटमेंट इसकी कैसे करते हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें एक टेक्निक तो ये है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इस डायग्राम में, कि अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे इसके साथ, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी तो एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड करेंगी और मसल्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जो एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज है ना, उसको इंक्रीज करते हैं। यानी ट्रीटमेंट में एक एस्पेक्ट इसका ये है कि नंबर वन drugs which increase the release of neurotransmitter. तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी तो this would compete with the antibodies and so it will bind with the receptors or it will bring the muscles to contract. तो एक तो ये स्ट्रेटजी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। दूसरी ये है कि एन इनहिबिटर फॉर cholinesterase enzyme is used. अच्छा, अब ये एंजाइम क्या है? व्हाट इज दिस एंजाइम? cholinesterase enzyme. ये क्या है? जब हम किसी मसल को मूव करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो जो नर्व इंपल्स है दैट ट्रेवल्स थ्रू यहाँ इस पार्ट में, that travels along the motor neuron and it causes this neurotransmitter to be released. Okay? Or after a while, when the muscle has contracted, तो this neurotransmitter has to be broken down. और ये जो neurotransmitter है ये break down हो जाती है so that this neurotransmitter does not remain bound with the receptor and muscle does not keep on contracting. तो बाद में मसल को जब रिलैक्स करना है तो this neurotransmitter has to be broken down. तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को बाद में फिर once the muscle has contracted ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पे होता है, उसे हम कहते हैं cholinesterase एंजाइम। ये क्या करता है? ये एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर के तौर पे, ताकि ये एसिटाइलकोलिन ब्रेक डाउन ना हो और एसिटाइलकोलिन का जो कंसंट्रेशन है यानी न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन जो है वो इस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के अंदर वो इंक्रीज कर जाए सो दैट इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स एंड इट ब्रिंग्स द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो स्ट्रेटजी ये है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, कि हम एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन जो है will have more chances to bind with receptor than antibodies and so it will bring the muscles to contract. मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी तो मसल लॉस जो है, मसल जो वेस्टिंग है वो कम हो जाएगी। एक तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। The other strategy is, number 3 is use of monoclonal antibodies. इसको हम कहते हैं MABs, monoclonal antibodies. Use of monoclonal
antibodies. So there are many monoclonal antibodies that are used for the treatment of some diseases like autoimmune disorders. इसमें कुछ examples हैं MABs की. उसमें number 1 is Infliximab. Number 2 is Ipilimumab. इसी तरह से Trastuzumab. और नंबर 4 is Rituximab. ये monoclonal antibodies हैं. These are monoclonal antibodies. ये कुछ अर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ कैंसर के लिए इस्तेमाल होती हैं, और कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं. तो ये बुक में दी हुई हैं, ये कौन सी किसके लिए इस्तेमाल होती है इसको जरा रिव्यू कर लीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा कि कौन सी और ये मेथड कैसे काम करती हैं. इसमें एक सिंपल मेथड तो ये है कि हम ऐसी एंटीबॉडीज बना लें जो इस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर दें, सो दैट these antibodies which are complementary to the receptors don't bind with it and receptors are not damaged. That's very simple technique or mechanism. Is it okay? So that's all about autoimmune disorders.